is such a live topic that wherever we go and whatever meeting we do, whatever may be the subject of the meeting, somewhere in the meeting the word DMF will crop up. And the entire discussion will go on to DMF and implementation of DMF. So this DMF concept is also very interesting. You know that in the constitution there is a state list and there is a union list and concurrent list and all that. Mining is such a subject that it is a very interesting construct of an area where the legislation is made by the central government, but the entire implementation and the entire benefits of the legislation go to the state government. This is a favorite line of my minister. My minister always says, भाई हमने माइनिंग में कुछ भी किया और जो भी सुधार हम करते हैं सारा पैसा तो राज्य को जाना है. So he keeps saying that whatever the government has taken in the form of reforms since 2015, a lot of money has accrued to the state governments because of the reforms, either in the form of royalty, premium, or DMF. So DMF is a major component of the benefit of reform that has accrued to the state. And DMF is a facility where it doesn't go to the state, it goes directly to the district. So I don't think I can think of any legislation in Government of India where a cess has been introduced, some kind of a mini royalty, mini tax has been introduced, and the money goes directly through the district. There is no involvement of state. I can't think of any such cess. Government of India puts any additional tax, cess, whatever it is, it comes into the consolidated fund of India. So here is a beautiful way of ensuring, of cutting all the red tape and speeding up the money, where the moment a one truckload of mining happens in a district, 2% of the royalty of that truckload of mineral goes into the account of the collector. How fast? It can't be more faster than this. So with such a well thought out way of providing funds to the district to spend that money on the mining affected people, the mining affected areas for their development, is a way in which you can quickly act. And one more thing that we have done to make sure that there's quick action in DMF is that we made the collector the chairman. The foundation, the District Mineral Foundation at the district level, has the money in the district account. It doesn't go into the state consolidated fund, it is in the district account, and the collector is the chairman. So what else do you need? You have immediate money, you are in charge, and all that you have to do is to spend that money for the welfare of the people who are affected by mining. Spend that money in the areas that are affected by mining. There's a lot of pressure on us. There's a lot of demand from all quarters कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा फंड के लिए आपने कलेक्टर को चेयरमैन बनाया और कलेक्टर से वरिष्ठ लोग जो है उस बैठक में एज ए मेंबर जाना पड़ता है, all that kind of things. But the government has been very clear that collector will ensure that the works are executed in a timely manner for the benefit, for the focused benefit of the people who are affected by mining. आने में हम सब लोगों की अहम योगदान है और वहां से जितने लोग उससे
लाभ ले सकते हैं डीएमएफ से, उसके लिए हम बेहतर काम करने के लिए हम सब लोग एक चिंतन शिविर में बैठे हैं, एक कार्यशाला में बैठे हैं। उनके भविष्य में कैसे हम अपने आप को बेहतर काम कर सकते हैं, इसकी चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए। और इसी मंथन से समुद्र मंथन हो रहा है, तमाम सारे लोग अपने आप में जानकार लोग बैठे हैं, इसका मंथन हो रहा है। इस समुद्र मंथन से बहुत ही सी अमृत निकलेगा, बहुत ही अच्छा सुझाव निकलेगा, जो हम अपने अपने यहाँ प्रयास करेंगे धरातल पर उतारने के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच के साथ डीएमएफ का स्थापना किया गया, उस सोच को धरातल में हम सब लोग उतारने का प्रयास करें। इसी शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़े स्तर पर आज आयोजन किया गया। साथ ही इस वर्ष डीएमएफ की स्थापना को 10 वर्ष पूरा होने वाला है। इस संदर्भ में भी आप जो फील्ड में काम करते हैं, आप सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके बीच में होना चाहिए। और साथ ही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अंतर्गत 2015 में डीएमएफ की स्थापना हुई है। नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद एक कार्यक्रम का डीएमएफ का स्थापना किया है। नेचुरल रिसोर्सेस के संपदा जनरेट होती है, उसका लाभ लोकल कम्युनिटीज को मिलना चाहिए। इसी सोच ही डीएमएफ का स्थापना का एक मूल सूत्र है। आज हमारे पास पूरे भारत में 646 जिलों में डीएमएफ का स्थापना हुआ है। लास्ट 10 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इसे डीएमएफ में जमा हुआ है। उसमें 1 लाख करोड़ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 90,000 करोड़ अभी तक एलोकेट किया हुआ है। मित्रों, आज एक मजबूत मिनरल इकोसिस्टम विकसित भारत की 2047 के लिए ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मिनरल सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत का ही नहीं, ग्लोबल डिप्लोमेसी का सक्रिय रूप से आज उपयोग करने का निर्णय हुआ है। वर्तमान जो जियो पॉलिटिक्स देखते हुए हम सब इसी दृष्टिकोण से काम करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स हो, रेयर अर्थ का मिनरल्स हो, गना, अलग अलग अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया जैसे देशों पर यात्रा में गए। इस यात्रा के दौरान अलग अलग मीटिंग्स, स्ट्रैटेजिक मिनरल पार्टनरशिप के एक प्रमुख एजेंडा आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ब्रिक्स मीटिंग में भी ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर एजेंडा था। हाल ही में अमेरिका के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग के लिए ट्रस्ट इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज मिलकर शुरू किया है। इसी तरह कोल सेक्टर भी हम आत्मनिर्भरता के मजबूत करने पर आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में 1 बिलियन टन्स का ज्यादा कोल प्रोडक्शन
पहली बार भारत में एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हम बनाएंगे। भारत में कोल प्रोडक्शन नंबर 2 पे है दुनिया में, कोल कंज्यूम में भी नंबर 2 में है। आने वाले समय में हमारा फोकस है कोल और मिनरल सेक्टर को आत्मनिर्भरता लाने के लिए और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए। भी 2014 में प्रधानमंत्री सत्ता संभालने के बाद ये वर्तमान साल में सबसे कम कोल इंपोर्ट इस साल हम रिकॉर्ड किया है, कम किया है। वैसा ही हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और लोकल कम्युनिटीज वेलफेयर को प्राथमिकता देना है। अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। इसी दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री विजन के आधार आज डीएमएफ का स्थापना किया है। डीएमएफ में हम माइनिंग केवल एक माइनिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज बनाने का अवसर देता है। ग्लोबल एसडीजी का और डीएमएफ का एक प्रमुख साधन होना चाहिए। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़े इकोनॉमी होने के साथ साथ इनकम इक्वालिटी में भी चौथे नंबर पर आए हैं। हमने यूएस, चाइना जैसे मेजर इकोनॉमीज और G7 और G20 सबसे बड़े देशों के साथ आज निकल पड़े हैं। मित्रों, 2011 से 2023 के बीच में लगभग 17 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के बाहर आए। यह हमारी अंत्योदय की भावना का प्रमाण है। प्रोजेक्ट स्टेटस की ट्रैकिंग के द्वारा ट्रांसपेरेंसी और जन भागीदारी बढ़ाना। तीसरा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से और ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट से अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं, वे डीएमएफ को एक डेवलपमेंट मिशन के तरह देखना है। माइनिंग इफेक्टेड लोगों की विकास की हक दिलाना और हमारा रिस्पांसिबल है। आज हम एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एस्पिरेशन डीएमएफ प्रोग्राम के गाइडलाइंस आज पहली बार लॉन्च किया है। हम चाहते हैं, इसके द्वारा हम सुनिश्चित करना चाहते हैं डीएमएफ का फंड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में टारगेटेड उपयोग होना चाहिए। सेंटर और स्टेट के बेहतर तालमेल के साथ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसा स्मॉल इंफ्रा एक्टिविटी विलेजेस में जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहिए और इसमें 100% सैचुरेशन मोड पर अचीव किया जाना है। आज बहुत स्टेट्स में मैं देखते रहता हूं, एलोकेशन किया है मगर प्रोजेक्ट्स पूरा नहीं हुआ है और एक जिला में इफेक्टेड है, उस जिला का पैसे उसी जिला में खर्च करना चाहिए मगर अलग अलग जिलों में पैसे जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट आदेश दिया गया, कलेक्टर्स को चेयरमैन बनाना चाहिए। भले लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमपी हो, एमएलए हो, अदर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर तालमेल से पैसे खर्च करना है। मगर मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस जिला छोड़कर 10 जिला के बाहर किसी जिला का पैसे ले जा रहे हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री जी का आदेश है, जिला कलेक्टर ही चेयरमैन बने तो इस पैसे पूरे इफेक्टेड एरिया में खर्च हो सकता है, लाभ मिल सकता है, डीएफएम का गोल अचीव हो सकता है, उनका प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। स्टैचुरेशन मोड पर इस एरिया में काम करते हैं, इसलिए आज इस वर्कशॉप में इस विषय पर चर्चा करने के लिए 10 साल के बाद एक सेकंड मीटिंग है। आने वाले दिन में एवरी ईयर हम करना चाहते हैं। मेरा पूरा विश्वास है डीएमएफ का जो फंड खर्च करने से लोगों को, जो इफेक्टेड लोगों में थोड़ा भी अगर लाभ मिला, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम आज इस मीटिंग पे सारे दिन वर्कशॉप में चर्चा करेंगे। आज लगभग मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इधर आए हैं। उसके साथ साथ जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स है, उस एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 200 से ज़्यादा हमारे डीएमएफ माइनिंग एक्टिविटी होता है। 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में डीएमएफ फंड होता है। डीएमएफ फंड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स एक्टिविटी को जोड़कर एक मिलकर एक गवर्नमेंट अप्रोच के नाते हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री डीएमएफ का पैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट विकास करना है, उसमें भी मिलके आने वाले दिन में काम करेंगे। पहली बार आज एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में डीएमएफ का पैसा कैसा खर्च करना चाहिए, गोल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से कैसा काम करना चाहिए, इसके लिए भी आज गाइडलाइंस भी भारत सरकार के द्वारा हम रिलीज किया गया है।